Good afternoon, everyone. Good afternoon, our esteemed guests, fellow doctors, and law enthusiasts. Hope you all are doing very well. Myself, Dr. Pratima Jaiswal, President of Northeast Zone of ABCA. I am deeply honored to welcome you all on this lecture on the intersection of doctors and law. Now, the question is why we are gathering today for this webinar and what is the relevance of the same. Let me draw your attention on some point. Number one, the number of medical malpractice lawsuits is rising, making it essential for doctors to understand their legal rights and responsibilities. Number two, the healthcare industry is heavily regulated and doctors need to stay updated on challenging law and regulation to avoid legal issues. And the third and the most important is many doctors are not adequately informed about the legal aspect of their practice, leaving them vulnerable to legal issues. Now, let me tell you all about the vision of the ABCA. ABCA, that is Akhil Bharatiya Chikitsak Association, is one of the fastest growing organization on pan-India level. Through ABCA, our main goal is to promote excellence in homeopathic practice, foster collaboration, and knowledge sharing among members. Under the umbrella of ABCA, we have organized more than 5,000 camps. We are organizing free webinars on various valuable topics. Through ABCA, members are getting opportunity to avail courses of certificate in integrated medicine by Dr. Vishwaroop Chaudhary ji. Members of ABCA availing clinic management software at absolutely free of cost, that is DRCFO. DRCFO is ABDM enable app, that is Ayushman Bharat Digital Mission, including AI feature and CAD repertory. Very soon, ABCA is going to conduct Dr. Batra's 25 hours online certificate course in cosmetology. That is the reason our esteemed guest and speaker, Dr. DC Prajapati sir and Dr. RP Parasar sir are here to speak more about these medical legal issues. And I believe by end of this webinar, your all queries and concern will be sorted out. ABCA was founded under the leadership of our own Dr. DC Prajapati sir in the year 2002, who is very known figure in the field of homeopathy. He has grabbed several degrees under his name, which are BSc, BHMS, DNHE, PGDMA, and Diploma in Ayurveda and Yoga, and LLB. Being the founder and national president of ABCA, he is also a life member of Red Cross Society. For his contribution in the field of homeopathy and humanity, he has bagged several accolades and awards by prestigious people and organizations in India. So let us all welcome our national president, Dr. DC Prajapati sir, on the speaker mode. Sir, please welcome. Mic is yours now. डॉक्टर डीसी प्रजापति। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जैसे चिकित्सक हमारे एबीसी परिवार में रहेंगे तो मैं ये मानता हूं पूरे देश में होम्योपैथ और होम्योपैथी की जो स्थिति है वो बहुत बेहतर हो पाएगी। आपकी टीम को बारंबार प्रणाम। आपकी टीम को बहुत अच्छा जो कार्य कर रही है उनको मैं बधाई देना चाहता हूं और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि रोज कुछ ना कुछ नए नए कार्यक्रम हम जोड़ रहे हैं और वो पैन इंडिया लेवल के हैं। दिल्ली एक देश की राजधानी है और दिल्ली से एक संदेश जाता है पूरे देश के लिए कि होम्योपैथी और होम्योपैथ के लिए दिल्ली में एबीसी परिवार जिसका नेतृत्व डॉक्टर नेहा कथूरिया जी कर रही हैं और बहुत ही ऐसी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है अपनी बुद्धिमता से, अपने मेहनत से, अपनी लगन से और अपने नई नई सोच की होम्योपैथी और होम्योपैथ किस प्रकार से उनकी स्थिति और बेहतर हो
ये निरंतर प्रयास जारी है और निरंतर इस प्रयास को वो मेहनत से उसे पूर्ण रूप से 100% अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं। जो ये मैं नहीं कह रहा, मुझे जो कुछ पूरे देश से फोन आते हैं उनकी ये वाणी है। और आपको फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपके अंडर गाइडेंस ही हम लोग ग्रो कर रहे हैं, एंड हमें अपॉर्चुनिटीज भी आपने ही दी हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस एवरीवन and this ABCA, and we will do our hard work to take it up that much as rise we can take it. And thank you so much. And Pratima ma'am, ab sir has joined. मैं ये मानता हूँ डॉक्टर नेहा जी कि देश का प्रतिनिधित्व डॉक्टर प्रजापति नहीं, डॉक्टर नेहा कथूरिया भी कर रही है कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में। सर इट इज अ बिग बिग वर्ड्स, थैंक यू सो मच। नहीं सर, थैंक यू सो मच सर। सब हम सब प्रेसिडेंट है आपका, ये थिंग मैं कभी नहीं भूलूंगी। एंड एवरीवन इज डूइंग अ लॉट एंड एवरीवन इज कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट, थैंक यू। एंड इट इज अ बिग टीम एंड हम सब काम कर रहे हैं। सो ये बहुत बड़ी बात बोली आपने, थैंक यू सो मच। बहुत कम लोग होते हैं, देखिए अपना परिवार का हिस्सा है तो कभी कभी क्या है कि हम डांट भी लेते हैं। और नेहा कथूरिया ऐसी है कि वो डांट भी खा लेती है, पर डांट खाने का 1% भाग होता है और 9% भाग जो होता है वो प्यार का होता है। तो इसको जो समझ पाया वो कामयाबी के शिखर को छू लेगा, और जो नहीं समझा वो 1% को लेके बैठ जाएगा तो फिर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग जाता है। पर ऐसे लोग होने चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। प्रतिमा मैम, सर हैज जॉइंड। प्रतिमा मैम एक बार इंट्रोडक्शन दे दो मैम को सर का दोबारा से। Hello, good afternoon, sir. Good afternoon. We are welcoming you, sir. Dr. R.P. Parasar is National President of Ayush Integrated Medical Association, Ayush, CMO, NFSG, Municipal Corporation of Delhi, and ex-member of DBCP, that is Delhi Bharati Chikitsa Parishad. Hello, sir. Hello. Sir, मैं जी सर। सबसे पहले तो बधाई देता हूं अखिल भारतीय चिकित्सा एसोसिएशन, डॉक्टर प्रजापति और आप लोगों की पूरी टीम, डॉक्टर प्रतिमा, डॉक्टर नेहा और डॉक्टर कल्पना को इतना अच्छा प्रोग्राम एक आप ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं प्रैक्टिशनर्स के लिए, अपने मेंबर्स के लिए। तो मेरी शुभकामनाएं। और हम देखते हैं कि आपके द्वारा आपके प्रैक्टिशनर्स के लिए क्या क्या ऐसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं, वो तो शायद आपने कुछ डिटेल अपने मेंबर्स को बताई होगी। और आज का जो हमारा विषय वस्तु है कि आपके जो प्रैक्टिशनर हैं, जो मेंबर हैं, उनको क्या क्या राइट्स हैं और क्या क्या उनके लिमिटेशंस हैं, ड्यूटीज हैं। तो शायद हम उसके बारे में बात करेंगे। बाकी आप एक बार डिटेल में श्रोताओं को बता दें कि हम और किन किन बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। जी सर। धन्यवाद पराशर जी। डॉक्टर पराशर जी, एक मिनट प्रतिमा जी। डॉक्टर पराशर जी एक आयुर्वेद के बहुत ही वरिष्ठ चिकित्सक हैं पूरे दिल्ली और एनसीआर में, जिन्होंने आयुर्वेद के लिए, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को लेकर के बहुत अच्छे क्रांतिकारी कदम उठाए हैं और बड़े लंबे समय से वो आयुर्वेद के लिए कृत संकल्प हैं और बहुत सारे सुधारात्मक कार्य उन्होंने किए हैं अपने कार्यकाल में रह करके। और उन्होंने कई कार्यकाल ऐसे किए हैं जो हम उनका यहाँ पर चर्चा उस पर कर सकते हैं। आप कई संस्थानों में, यानी राजन बाबू टीबी हॉस्पिटल्स हो या कई ऐसे आयुर्वेद के पंचकर्मा के, उनके आप हेड रहे हैं और उनकी वस्तु स्थिति को सुधारने में आपका जितना आयुर्वेद के लिए जितना योगदान रहा है वो किसी और डॉक्टर का हम अभी देख नहीं पाए हैं। वाकई में आपने जो कहते हैं कि आयुर्वेद ही सभी पैथी की जननी है, उसको लेकर के आपने जो कार्यक्रम किए हैं
कार्य कर रहे हैं। आप प्रथम एक समाज सेवक हैं, उसके बाद एक चिकित्सक हैं, जैसा कि आप कर रहे हैं। और आपने निशुल्क चिकित्सा की जो शुरुआत करी थी आयुर्वेद को लेकर के, वो निरंतर चल रही है। और मैं भी आपको मानता हूं अपने एज ए मेंटर के रूप में। आपका अखिल भारतीय चिकित्सक एसोसिएशन परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार। जैसा कि कुछ बिंदु आए हैं अभी, तीनों एक्ट अलग अलग हैं। हमारे जो मेजर प्रमुख एक्ट हैं, जैसे आयुर्वेद, एलोपैथ और होम्योपैथ। बेशक आयुषपैथी को लेकर के सब मिनिमम कॉमन मिनिमम कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा चलते रहते हैं, किंतु आयुर्वेद और होम्योपैथ के एक्ट जो हैं वो स्टेट में अलग है और केंद्र में अलग अलग है। जैसा कि महाराष्ट्र में हमें पता लगा है और वहाँ पे हमने कागजी कार्रवाई से जो हमें सूचना मिली है कि महाराष्ट्र में एलोपैथिक यूज कर सकते हैं होम्योपैथ के डॉक्टर। हमारे जो मुख्य बिंदु रहेंगे वो है हमारे सर्टिफिकेट, हमारी लिमिटेशन, हमारे बोर्ड लगाना, प्रचार, एडवर्टाइजमेंट और प्रिस्क्रिप्शन, पेशेंट के अधिकार, डॉक्टर के अधिकार। और इसके अलावा जो नए कानून आए हैं उन पे हमें चर्चा करनी है, ताकि हमारे चिकित्सक, जो बहुत सारे ऐसे चिकित्सक, नए चिकित्सक हैं और जिनको क्लिनिक खोलना है और जो जिन्होंने अभी अभी क्लिनिक खोला है, उनको नित नई जानकारी यहाँ पर इस मेडिकल लीगल कार्यक्रम में डॉक्टर आरपी परासर जी, जो हमारे चीफ यहाँ के स्पीकर हैं आज के कार्यक्रम के, वो भी देंगे। तो आप सभी लोग विधिवत रूप से व्यवस्था को बना के रखें और अपने जो क्वेश्चंस हैं वो वाया आप जो इसमें एक मैसेज है उसके द्वारा आप भेज सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। जी धन्यवाद प्रतिमा जी, thank you so much, sir. Dr. RP sir, we have got many questions from our participant. तो डॉक्टर आशीष सर वो लिस्ट करेंगे क्वेश्चंस को। डॉक्टर आशीष सर प्लीज। मैं चाहूंगा कि क्वेश्चंस लेने से पहले जी जो हमारे राइट्स हैं और जो हमारी ड्यूटीज उनके बारे में मोटा मोटा बता दूं, जी सर। ताकि कुछ क्वेश्चंस के रिप्लाई तो खुद ही मिल जाएंगे जी और बिल्कुल बाकी जो सर। क्वेश्चन बचेंगे उनको फिर हम अलग से लेंगे। ठीक है सर। सबसे पहला बात कि आपने जब डिग्री कर ली है और आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, चाहे आप अपना क्लिनिक खोलना चाहते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट सर्विस में जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो जरूरी है आपके लिए वो है स्टेट काउंसिल या बोर्ड में अपना रजिस्ट्रेशन करा। जब तक आपका रजिस्ट्रेशन स्टेट बोर्ड या काउंसिल में नहीं होगा, तब तक अगर आपने डिग्री भी की हुई, आप क्लिनिक खोल के बैठ गए हैं, तो आप पर एक्शन हो सकता है। तो रजिस्ट्रेशन कराने से आपको कुछ कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं जो आपकी सेफ्टी के लिए जरूरी हैं। तो सबसे पहली बात कि अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। कुछ लोगों को अब ये रहता है कि डिग्री कर ली है तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं। लेकिन इससे भी बड़ा एक जो गड़बड़ होती है वो हम कहाँ देखते हैं कि जो सीनियर लोग हैं वो रजिस्ट्रेशन कराकर भूल जाते हैं। हर 5 साल में रिन्यूअल कराना होता है और वो 5 साल के बाद चूंकि ध्यान नहीं देते कि कब करा था रिन्यूअल, कब हमारा रिन्यूअल ड्यू है, तो वो भूल जाते हैं। तो वो जो अवधि है जिसमें कि आपका रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया है और आपने रिन्यूअल नहीं करा है, वो भी आपको अधिकारों से वंचित कर देती है। तो सबसे पहली बात कि आपका रजिस्ट्रेशन स्टेट बोर्ड या काउंसिल जो भी है, दिल्ली के केस में जैसे हम कहेंगे दिल्ली होम्योपैथिक बोर्ड है, वहां पर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसके बाद आपको जो अधिकार मिलते हैं, जो प्रिविलेज मिलते हैं, जो राइट्स मिलते हैं, अब हम उन पर बात करते हैं आगे। सबसे पहली बात तो आपको अपनी पैथी में प्रैक्टिस करने के राइट मिलते हैं। अभी डॉक्टर प्रजापति ने जैसे बताया कि शायद महाराष्ट्र में वहां की गवर्नमेंट ने कुछ अधिकार दिए हुए हैं वहां के चिकित्सकों को एलोपैथिक दवाएं प्रयोग करने का। सबसे पहली बात तो हम ये कहेंगे
कि अगर हम अपनी पैथी में प्रैक्टिस करते हैं तो हम एक्सपर्ट हैं, हम एक आदर्श चिकित्सक है। अगर हम किसी दूसरी पैथी में प्रैक्टिस करते हैं तो हम दोयम दर्जे के चिकित्सक हो जाते हैं। तो इससे सबसे पहली बात मैं जो कहना चाहूंगा, चाहे वो आयुर्वेद की चिकित्सक है, होम्योपैथी के हैं, यूनानी के हैं, कि हमें अपनी पैथी में प्रैक्टिस करनी चाहिए। हमारी पहचान अपनी पैथी से है, ना कि किसी और पैथी से। अभी लगभग 3 दशक पुरानी बात है, या शायद 2 दशक पुरानी, एक होम्योपैथिक चिकित्सक ने किसी महिला का इलाज किया। वो महिला की हालत नहीं सुधरी। उसके बाद वो किसी नर्सिंग होम में गई, किसी हॉस्पिटल में गई, जहां पर बाद में उसकी मृत्यु हो गई। कि सुप्रीम कोर्ट तक गया और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि जिसने जो पैथी नहीं पढ़ी है, अगर वो उस पैथी की प्रैक्टिस करता है तो वो क्वैक है, वो एक झोला छाप है। तो हमारी प्रतिष्ठा इस बात में, हम झोला छाप कहलाने के बजाय हम एक प्रतिष्ठित चिकित्सक कहलाएं, हम अपनी पैथी में प्रैक्टिस करें, क्योंकि हमें उसका ज्ञान भी है और हमारी पैथी में जो हमारा रजिस्ट्रेशन है उसके चलते हमें पूरे अधिकार और संरक्षण प्राप्त है। अब मैं आता हूं कि रजिस्ट्रेशन के बाद आपको क्या क्या अधिकार मिल जाते। हमें सबसे पहला अधिकार मिलता है चिकित्सा करने का, कि हम किसी भी मरीज की चिकित्सा कर सकें। किसी भी मरीज जो हमारे पास आ रहा है उसका हम पूरे लगन से, पूरे मनोयोग से और पूरे आत्मविश्वास के साथ हम उसकी चिकित्सा कर सकें। चाहे प्रेस्क्रिप्शन देने की बात है तो प्रेस्क्रिप्शन देने में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब हम उसका इलाज कर रहे हैं हम उसको बेझिझक प्रेस्क्रिप्शन इशू कर सकते हैं। उसके बाद हमें जगह जगह पर, कदम कदम पर जरूरत पड़ती है डिफरेंट टाइप के सर्टिफिकेट्स के इशू करने की। जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट है, कोई सरकारी कर्मचारी आपके पास आया है, कोई आम आदमी भी आपके पास है जिसको मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत है, तो आप उसको प्रेस्क्रिप्शन दीजिए इलाज के साथ साथ, और उसको मेडिकल सर्टिफिकेट इशू करने का अधिकार आपको मिला हुआ है। उसमें अमूमन हम 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन की दवाई देते हैं। अगर हमें लगता है कि गंभीर स्थिति है तो हम 7 दिन उसको और आगे एक्सटेंड कर सकते हैं मेडिकल को। और इसके बाद भी अगर हमें लगता है कि इस मरीज का इलाज हम नहीं कर पा रहे हैं या इसको हायर सेंटर में भेजने की जरूरत है, तो हमें उसको फिर अपने एक हायर सेंटर में, चाहे वो हमारा नर्सिंग होम है चाहे हॉस्पिटल है, वहां भेजने की जरूरत पड़ती है। तो 15 दिन के बाद आपको मैं सलाह दूंगा कि मरीज को आप हॉस्पिटल में भेजिए, वो चाहे होम्योपैथी का हॉस्पिटल है, चाहे आयुर्वेद का है, चाहे एलोपैथी का है। इसके बाद जो और तरह के सर्टिफिकेट, जैसे स्कूल में हम बच्चों के एडमिशन की जरूरत पड़ती है, या किसी स्टूडेंट्स को अगर एनसीसी या किसी और कार्यक्रम में फिटनेस की जरूरत पड़ती है, उस तरह के सर्टिफिकेट आपके पास आते हैं बनवाने के लिए। और उसमें आमतौर पे लिखा आता है नोट बिलो द स्टैंडर्ड ऑफ एमबीबीएस। तो यहाँ पर मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि इंडिया में इस टाइम जो रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल स्ट्रीम्स हैं वो होम्योपैथी है, आयुर्वेद है, यूनानी है, एलोपैथी है, और अभी पिछले समय एक नई पैथी ऐड हुई है, सोवा रिग्पा। तो ये हमारी रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल स्ट्रीम्स हैं, ये पैथी हैं जिन पे के हम भरोसा कर सकते हैं और जिनके पास मरीज बिना झिझक के चिकित्सक के पास इलाज कराने के लिए आ सकता है। तो इन जो पैथियों के डॉक्टर हैं उन सभी को मेडिकल सर्टिफिकेट इशू करने का, फिटनेस सर्टिफिकेट इशू करने का अधिकार है। और जो बिलो द स्टैंडर्ड ऑफ एमबीबीएस लिखा है उसका अगर अर्थ हम ये लगाएं कि भाई हम पांचों का स्टैंडर्ड एक जैसा है, वही 5.5 साल का कोर्स है, सरकारी सेवा में वही पे स्केल है, तो हम पांचों एक ही स्टैंडर्ड में आते हैं
हमारा स्टैंडर्ड अलग अलग नहीं है। तो हम ये समझाने की कोशिश कर सकते हैं। और वैसे तो जनरली ऐसे किसी सर्टिफिकेट पर जिस पर लिखा होता है नॉट बिलो द स्टैंडर्ड ऑफ एमबीबीएस या लिखा होता है एमबीबीएस, और अगर हम उसको सर्टिफिकेट इशू करते भी हैं तो वो सर्टिफिकेट आमतौर पर एक्सेप्ट हो जाता है, कोई उस पर ऑब्जेक्शन नहीं लगता है। फिर भी अगर वहां की अथॉरिटी उस पर ऑब्जेक्शन लगाती है तो आप उस अथॉरिटी को एक लेटर लिख सकते हैं ये समझाते हुए कि ये पांचों की पांचों पैथी इक्विवेलेंट है, एक ही स्टैंडर्ड की है, एक ही पोस्ट पर एक ही स्केल में सरकार इनको नियुक्त करती है, एक ही इनका ड्यूरेशन का पाठ्यक्रम है, तो उस अथॉरिटी को मान लेना चाहिए। और अगर फिर भी वो अथॉरिटी नहीं मानती है तो एसोसिएशन के लेवल पर हम उसको एक सलाह दे सकते हैं, एक चेतावनी दे सकते हैं। और साथ में हमारी जो काउंसिल है और जो बोर्ड है, चाहे वो स्टेट काउंसिल या बोर्ड है, चाहे हमारी सेंट्रल काउंसिल है, हम उसकी शिकायत वहां पर कर सकते हैं। और हमारी काउंसिल उनको फिर लिखेगी, उनके अधिकारियों को, कि आप गलती कर रहे हैं और आप ऐसी गलती ना करें, वरना आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई या दंडात्मक कार्रवाई की जाए। अब ड्राइविंग लाइसेंस की बात आती है, तो ड्राइविंग लाइसेंस का जो सर्टिफिकेट है, जो फिटनेस सर्टिफिकेट है, उसको इशू करने के लिए भी हम पांचों पैथी के लोग रिकॉग्नाइज्ड हैं। उसमें भी कोई भेदभाव वाली बात सरकार ने हमारे साथ नहीं करी है। तो वहां पर भी आप बेझिझक सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। उसके बाद आती है बात कि हम कौन कौन सी बीमारी के इलाज का दावा ना करें या एडवर्टाइजमेंट ना करें। तो भारत सरकार ने एक 54 बीमारियों की लिस्ट जारी कर रखी है। उसको कहते हैं द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954। उसमें डायबिटीज है, बहरापन है, कैटरेक्ट है, कैंसर है, गैंग्रीन है, ग्लूकोमा है, गॉइटर है, हार्ट डिजीजेज है, हाइड्रोसील है, इस तरह की 54 बीमारियां हैं। तो मैं चाहूंगा कि उस एक्ट को, वो 2 पेज में 54 बीमारी आ जाती हैं, वो आप जरूर देखें हर एक प्रैक्टिशनर। और हम कोई ऐसा दावा ना करें कि हम किसी कानून की गिरफ्त में आ जाएं बिना मतलब के। हम उन बीमारियों के इलाज का दावा ना करें। अभी बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट ने धमकाया है, उनको चेतावनी दी है, उसके उन्होंने माफी मांगी है। तो उन्होंने भी उनमें से कुछ बीमारियों का इलाज का दावा किया था। हम यहाँ पर ये कहना चाहेंगे कि ये जो लिस्ट है, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। जब 1954 में ये लिस्ट बनी तो एलोपैथी में तो इन बीमारियों को इलाज नहीं है, लेकिन होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, सोवरिकपा में शायद इनके इलाज हमारे ग्रंथों में वर्णित हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें कुछ रोगियों को इलाज के लिए लेना पड़ेगा, उनके इलाज का पूरा डेटा हमें रखना पड़ेगा। और जब कुछ पेशेंट हमारे पास इस तरह के होंगे, हम उनके इलाज का डेटा, उनका सक्सेस रेट, जो भी एविडेंस हमारे पास है, उनको लेकर हम सरकार के पास जाएं, उनको डेटा प्रस्तुत करें, उनको कहें कि नहीं, हमारी पैथी में इन बीमारियों का इलाज है, तो लिहाजा आप इन बीमारियों को उन 54 बीमारियों की लिस्ट से बाहर निकाल दें, तब कुछ बात बनेगी। लेकिन कानून जो आज की तारीख में है, तो आप इन 54 बीमारियों के इलाज का दावा किसी भी रूप में नहीं कर सकते। अब आती है एडवर्टीजमेंट की, कि हम अपने बारे में क्या एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो इन 54 बीमारियों के अलावा हम अपना एडवर्टीजमेंट उस तरीके से, किसी भी तरीके से कानून के अनुसार नहीं कर सकते कि मैं इस बीमारी का इलाज कर सकता हूं, या हम अपने बोर्ड पर लिखें, या सोशल मीडिया पर हम उस तरह के दावे करें। हम अपनी एडवर्टीजमेंट करना चाहते हैं, हम सिर्फ अपने नाम की एडवर्टीजमेंट करेंगे। हम अपने बारे में बताएंगे कि मैंने कहाँ से डिग्री ली है, कहाँ पर मेरा रजिस्ट्रेशन है, और मैं कहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एडवर्टीजमेंट में आप बीमारी के बारे में, किसी चिकित्सक के रूप में आपने जो उपलब्धियां हासिल करी हैं, जब तक उनका कोई एविडेंस आपने सरकार को नहीं भेजा है, सरकार ने उनको मान्यता नहीं दी है, तब तक आप कोई भी ऐसे एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे। ये आपके और हमारे हक में है। इसके बाद मैं कुछ और कानूनों की बात करूंगा। सबसे पहले तो
जब हमने क्लिनिक कर लिया है तो रजिस्ट्रेशन सबसे पहले मैंने बताया, उसके बाद एमसीडी में एक शॉप्स का रजिस्ट्रेशन होता है, वो शुरू किया गया था लेकिन उस पर फिलहाल हाई कोर्ट की रोक है। तो एज ए शॉप हमें अपने क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन अभी एमसीडी में कराने की जरूरत नहीं है। इसी तरह नर्सिंग होम एक्ट की बात है, अगर हमारा कोई नर्सिंग होम है आयुर्वेद का, यूनानी का, होम्योपैथी का, तो उसके बारे में भी हम अभी हाई कोर्ट में एक स्टे चल रहा है और फिलहाल हम उसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर अगर आप नर्सिंग होम खोल रहे हैं तो नर्सिंग होम एक्ट में आपको जरूर रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है। उसमें आप अपनी एप्लीकेशन में आपके यहाँ जो स्टाफ है, जो आपके यहाँ फैसिलिटीज हैं, क्या उनकी डायमेंशन है, उन सभी का ब्यौरा देते हुए आप नर्सिंग होम एक्ट के अंदर दिल्ली सरकार के अंदर या आप जिस स्टेट में प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, उसमें बहुत सारी मानदंड है कि आपके पास अगर छोटा क्लिनिक है तो कितना स्टाफ होना चाहिए, क्या सुविधाएं होनी चाहिए, आपका नर्सिंग होम है तो क्या सुविधाएं होनी चाहिए, कितना स्टाफ रखना चाहिए। वो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है अभी लागू नहीं हो पाया है हिंदुस्तान में, तो अभी हम उसके प्रावधान में नहीं आते हैं, तो अभी उसके लिए भी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में बात करूंगा। बायोमेडिकल वेस्ट वो वेस्ट होता है जो कि हम अपने क्लिनिक पर निकलता है। जैसे आपने किसी को इंजेक्शन लगाया है तो वो इंजेक्शन, वो स्वैब, वो बायोमेडिकल वेस्ट में आती है। आपने अगर किसी को पट्टी करी है तो वो पट्टी जो खुलेगी वो बायोमेडिकल वेस्ट में आती है। इसी तरह अगर आपने कोई टेस्ट किया है खून का तो खून के जो बचे हुए अवशेष हैं वो सारे के सारे बायोमेडिकल वेस्ट में आते हैं। जो लैब्स हैं बेसिकली वो सारी सारी बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर आती हैं। इसमें हमें, अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, उसके अंदर हमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना होता है, चाहे आप क्या बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है या नहीं होता है। मतलब अगर आप दिल्ली में क्लिनिक कर रहे हैं तो आपको डीपीसीसी में वन टाइम रजिस्ट्रेशन बायोमेडिकल वेस्ट के लिए कराना पड़ेगा। अगर आप किसी और स्टेट में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहां भी आप देखें कि वहां की भी जो पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी है वहां आपको इस तरह का एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपके यहाँ बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट नहीं होता है, आप कहते हैं कि मैं तो सिर्फ प्रैक्टिस करता हूँ, सिर्फ प्रेस्क्रिप्शन देता हूँ, सिर्फ कंसल्टेशन करता हूँ और मेरा कोई बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट नहीं होता है, तो आप जो मंथली आगे चार्जेज हैं उससे बच सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक इंजेक्शन लगाने के बाद एक स्वैब भी बचती है, वो भी बायोमेडिकल वेस्ट में, तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर मैं पट्टी करिए, पट्टी आप खोलेंगे, वो भी मैंने बताया कि बायोमेडिकल वेस्ट में आती है। अगर वो एक पट्टी भी आपके यहाँ हो रही है तो वो भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। फिर आते हैं नॉन मेडिकल बायो वेस्ट। ये एमसीडी में होता है, जो स्थानीय कोई भी कॉरपोरेशन है, काउंसिल है। तो दिल्ली में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली है, जहां पर के जो नॉन बायोमेडिकल वेस्ट है, यानी जब आप क्लिनिक की सफाई करते हैं तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके लिए मंथली फीस जो आपको कॉरपोरेशन को अदा करनी पड़ती है। तो ये इतने सारे प्रावधान एक चिकित्सक को अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हुए ही करने चाहिए। और जहां तक पुलिस की बात है तो पहले 3 जो हमारे एक्ट थे, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, अभी उनको बदला गया है। अब वो भारतीय न्याय संहिता अधिनियम कहलाता है, एक भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहलाता है और एक सुरक्षा अधिनियम कहलाता है। ये तीनों एक्ट अब जो पुलिस के बदल गए हैं, तो उनमें भी जो जो धाराएं हैं आप देखिए कि उनमें से जो मरीज हैं, अगर कोई मरीज आपके खिलाफ शिकायत लेकर पुलिस के पास जाता है कि आपने कुछ लापरवाही करी है इलाज में, उसका मुआवजा उसको मिलना चाहिए, तो पुलिस
आपके पास आ सकती है, आपसे छानबीन कर सकती है। तो आप सभी मरीजों का रिकॉर्ड अपने पास रखें, जो भी आप इलाज कर रहे हैं, और क्या आपने उसको इलाज दिया है, कब मेडिकल सर्टिफिकेट दिया है। मेडिकल सर्टिफिकेट दिया तो आप उसका भी एक रिकॉर्ड रखें कम से कम 3 साल तक। ये पुलिस हमसे जानकारियां ले सकती है, क्योंकि जब कोई पुलिस में कंप्लेन लेकर जाता है, पुलिस उसकी छानबीन करती है और उसको लगता है कि हाँ, कुछ कहीं ना कहीं किसी स्तर पर गड़बड़ी हुई है, तो वो आकर हमसे पूछताछ कर सकते हैं। उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आता है। हमने किसी को बाल लंबे करने के लिए दवाई दी, पता लगा उसके बाल ही उड़ गए। हमने किसी को माइग्रेन के लिए दवाई दी, पता लगा कि उसको आराम हुआ ही नहीं, तो वो भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर हमारे खिलाफ कोर्ट में जा सकता है कि इन डॉक्टर ने मुझे इस काम के लिए दवाई दी थी, लेकिन इससे मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, तो मुझे इतना मुआवजा दिलवाया जाए। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर भी आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन उसमें अगर आप एक रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर हैं, आपको जो अधिकार प्राप्त हैं उनके लिमिटेशन में रहते हुए आप कार्य कर रहे हैं। आप जो एडवर्टीजमेंट है, जो मैंने और एक्ट्स का और उनका जिक्र किया है कि जिनको आप दावा नहीं कर सकते या जिनके बारे में आप खुलेआम कोई एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, अगर आप उन सारी लिमिटेशन में रहते हुए प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको किसी तरह के डर की जरूरत नहीं है। अगर कोई पुलिस कंप्लेंट आपके खिलाफ होती है, कोई कोर्ट में आपके खिलाफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के लिए जाता है, तो उसके लिए आपकी एसोसिएशन आपके साथ खड़ी है, बशर्ते कि आपने अपने अधिकारों में रहते हुए उसकी चिकित्सा करी है और आपने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है। याद रखें, आपकी एसोसिएशन आपके साथ है, लेकिन वो तब तक आपके साथ है जब तक कि आपने कानून की परिधि में रहकर कार्य किया है। मैं समझता हूं कि मुख्य तौर पर एक चिकित्सक को जिन कानूनी दायरों में रहकर काम करना पड़ता है उनके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। अब हम क्वेश्चंस ले सकते हैं जो इस जानकारी से बाहर छूट गए हैं, तो हम एक एक क्वेश्चन करके लेंगे उनको। थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल इंसाइट्स। मुझे लगता है कि हमारे बहुत सारी क्वेरीज को आपने कवर कर लिया है। जी सर, आई विल कम टू फर्स्ट क्वेश्चन। What if patient ask for prescription who is on purely constitutional medicine which we cannot reveal due to homeopathic principles? How to provide prescriptions in that case? देखिए, मैं नहीं समझता कि कोई भी कानून हमें ये बताने से रोकता है कि मैंने किस पेशेंट को क्या दवाई दी है, बल्कि उल्टा ये एक मरीज का अधिकार है कि वो अपने इलाज के बारे में जाने कि किन दवाइयों से हम उसका इलाज कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि हमें कोई प्रिस्क्रिप्शन देने से बचना चाहिए या इनकार करना चाहिए। अगर कोई पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन मांगता है तो हमें बिल्कुल ईमानदारी से प्रिस्क्रिप्शन देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम कानून के दायरे में रहकर उसका इलाज कर रहे हैं और ये मरीज का अधिकार है कि वो अपने इलाज के बारे में जाने, उसको जो दवाई दी जा रही है उनके बारे में उसको पता रहे, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। And our second question is, what about BMW law for private clinics? BMW के बारे में मैंने बता दिया, बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में मैंने कि जी वन सर। टाइम आपको रजिस्ट्रेशन कराना है दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के साथ, चाहे आपका यहाँ बायोवेस्ट जनरेट होता है नहीं होता है। उसके बाद आपके यहाँ बायोवेस्ट जनरेट होता है तो दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी आगे कुछ एजेंसीज को अधिकृत करती है। दिल्ली में 3 एजेंसियां पूरी दिल्ली में जो काम कर रही हैं, वो आपके क्लिनिक से बायोमेडिकल वेस्ट कलेक्ट करती हैं, उनका डिस्पोजल करती हैं और उसके एवज में कुछ मंथली फीस लेती है। तो अभी की बात मैं करूं तो 945 रुपए प्लस जीएसटी वो फीस है एक क्लिनिक के लिए। अगर आपके यहाँ बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट नहीं होता तो आप डिक्लेयर कीजिए कि मेरे यहाँ बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट नहीं होता है, लेकिन वो जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है
DPCC के साथ, वो आपको कराना पड़ेगा अगर आप दिल्ली में चिकित्सक के रूप में कोई क्लिनिक पर बैठकर आप चिकित्सा कार्य कर रहे हैं। सर एक क्वेश्चन मेरा है, मैं डॉक्टर कल्पना कुशवाहा। सर ये BMW के रिगार्डिंग ही है, इसीलिए मैंने अभी इंटरप्ट किया। एक्चुअली सर ये पूछना चाह रही थी, जैसे हमारी मेडिसिन कभी कभी प्लास्टिक बॉटल्स में भी आती हैं, तो क्या हम इसे भी BMW के अंतर्गत रखेंगे या फिर ये इसमें नहीं काउंट होता? नहीं, वो जो मैंने नॉन बायोमेडिकल वेस्ट बताया, जिसके लिए हमें जी सर। कॉर्पोरेशन को फीस अदा करनी है हर महीने, वो उसमें आएगा। चाहे क्लिनिक ओके हमने सर। अपनी झाड़ू लगाई है वो कूड़ा करकट है, चाहे हमें मेज साफ करी है वो धूल है, या कोई प्लास्टिक कंटेनर खाली है, या कोई गत्ते का कंटेनर खाली हुआ है, तो वो नॉन मेडिकल बायोवेस्ट है। ओके, थैंक यू सो मच सर। कंटिन्यू डॉक्टर। थैंक यू मैम। नमस्ते सर, मेरे को भी एक क्वेश्चन पूछना था, मैं डॉक्टर नेहा। सर जैसे आपने बायोमेडिकल वेस्ट की बात की, अब बहुत सारे होम्योपैथ्स जो रेजिडेंट्स कम क्लिनिक करते हैं, सो उस पर्सपेक्टिव में भी एक बात बताइए, क्योंकि काफी टाइम से शुरुआत वैसे ही होती है। जी हाँ जी सर। देखिए, यहाँ पर क्लिनिक कम रेजिडेंस में आपको कुछ एग्जाम्पशन मिली हुई है। वो क्या क्या मिली हुई है कि एक तो बिजली का जो बिल है वो आपका कमर्शियल नहीं आएगा, वो आपका रेजिडेंशियल जो दर है उसी से आएगा। लेकिन जब आपने क्लिनिक कर लिया तो क्लिनिक की श्रेणी में आ गया है, तो वहां पर बायोमेडिकल वेस्ट का एक्ट भी लागू होगा और वहां पर नॉन बायोमेडिकल वेस्ट का कानून भी लागू होगा। वो आपको दोनों के जो शुल्क हैं वो अदा करने पड़ेंगे। जी सर, थैंक यू सर। सर एक और क्वेश्चन था मेरा, सॉरी। आपने जैसे एडवर्टाइजमेंट वाली बात करी, तो जैसे कि बहुत सारी जो हमारी आपने एक लिस्ट बताई कि इस लिस्ट को हम नहीं शो कर सकते, बट बहुत सारे प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स वो डिजीजेस के नाम लिखते हैं। इट इज वेरी कॉमनली सीन इन मैक्सिमम, चाहे वो एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, मैनी ऑल द पैथीज, कि हम लिखते तो हैं एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज, बट लिस्ट भी डालते हैं स्पेशलिस्ट इन दिस 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 दिस। सो वहां पर क्या हमें करना चाहिए? क्या सिर्फ डिग्री लिख देनी चाहिए कुछ, अगर हम प्रॉपर लॉ के थ्रू जा रहे हैं तो? देखिए, कानून सबके लिए बराबर है। हम्म। उसमें चाहे कोई एलोपैथी का चिकित्सक है, आयुर्वेद का है, यूनानी का, सोवा का, होम्योपैथी का है, वो हम सब पर लागू होती है। अपने बोर्ड पे हम अपनी क्वालिफिकेशन या अपना स्पेशलाइजेशन है वो लिखें, अपनी डिग्री लिखें, डिप्लोमा लिखें, लेकिन किन किन बीमार का इलाज कर रहे हैं वो आपको कानून अनुमति नहीं देता है। उससे आपको बचना चाहिए, क्योंकि कानून लचीला है, कानून आप पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि कानून आप पर कभी भी कार्रवाई नहीं करेगा। अगर किसी वजह से कानून आज कार्रवाई नहीं कर रहा है, जैसे हम नो स्मोकिंग की बात करें, दिल्ली में कानून है कि आप खुलेआम स्मोकिंग नहीं कर सकते हैं, और आप स्मोकिंग करते हैं तो आप पर जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन आप देखते हैं उस कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं, खुलेआम लोग स्मोकिंग करते हुए घूम रहे हैं, पर उन पर एक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि हम उस कानून को लागू किसी वजह से नहीं कर रहे हैं या उस कानून के अंतर्गत कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि जो कानून है वो कानून है। कानून अगर आज कार्रवाई नहीं कर रहा है तो हम अपनी आदत क्यों बिगाड़ें, हम ऐसा कोई कार्य क्यों करें कि हम कभी भी कानून की जद में आ जाए। फिर भी कुछ लोग कहेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। हाँ, फिर भी कुछ लोग कहेंगे कि भाई और लोग तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम घाटे में क्यों रहे। जब मेरा पड़ोसी ऐसा कर रहा है और आप मुझे मना कर रहे हैं तो मैं घाटे में क्यों रहूं। ठीक है, आप भी करिए, लेकिन कल को जब कानून की बात आएगी तो ना आप अपना बचाव कर पाएंगे, ना एसोसिएशन आपके बचाव में खड़ी हो सकती, क्योंकि कानूनन तो आप गलत कर रहे हैं। करेक्ट। क्लियर? यस सर, यस सर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सर, थैंक यू। बाय।
Thank you so much, sir. Now we have question number 3, जो कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है. How to do online branding for our clinics or practice, as some articles stating you can't claim cure or something by homeopathic medicines. नहीं, अपने क्लिनिक के बारे में आप इंफॉर्मेशन या एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं कि हाँ मैं ये क्लिनिक खोल रहा हूं, या मैंने अपने क्लिनिक में ये नई फैसिलिटी ऐड करी है, या मैं अपना क्लिनिक बंद करके कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा हूं ताकि मेरे मरीजों को परेशानी ना हो. सिर्फ Yes. उस तरह की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप किसी बीमारी के बारे में एडवर्टाइजमेंट नहीं करिएगा, ठीक क्योंकि है. वो तो आपके सिस्टम में, जो आपकी पैथी में, आपकी डिग्री में जो कुछ आपको पढ़ाया गया है, उन सभी बीमारियों के बारे में पढ़ाया गया है. अगर आपने कोई स्पेशलाइजेशन किया है वो आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है. जो मरीज एक आम बीमारी का इलाज कराने आपके पास आना चाहता है, वो आपकी डिग्री देख कर आएगा, आपका डिप्लोमा देख कर आएगा, या आपका जो स्पेशलाइजेशन उसको देख कर आएगा, क्योंकि हर मरीज को पता है कि मुझे आयुर्वेद में जाना है, होम्योपैथी में जाना है, यूनानी में जाना है, एलोपैथी में या सोमा रिग्पा में जाना है. तो वो कौन कौन सी बीमारियों का इलाज करते हैं, कौन सी बीमारी का इलाज होम्योपैथी में अच्छा है, किसका आयुर्वेद में अच्छा है, तो वो सारी बातें आप मरीज के ऊपर छोड़ दीजिए. आप अपने जो एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं सिर्फ डिग्री के बारे में. Okay, sir. Thank you so much. Now question number 4 is, can we keep homeopathic patent in our clinic for sale purpose? Pardon? Can we keep homeopathic patent in our clinic for Okay. sale purpose? देखिए, सेल की जहां तक बात आती है, बेसिकली अगर हम अपने मरीज को दवाई दे रहे हैं तो वो सेल नहीं कहलाती. ये अंतर आप समझ लें. कोई भी, चाहे कोई क्लासिकल मेडिसिन है, हमारे यहाँ क्लासिक बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं होम्योपैथी में, शायद नॉन पेटेंट को क्या बोलते हैं, यू नो बेटर. Classical practice, sir. We are doing classical practice. ओके, तो क्लासिकल प्रैक्टिस या पेटेंट, कोई भी प्रोडक्ट आपके यहाँ रखा है, वो बेसिकली सेल के लिए नहीं रखा हुआ है. हम अपनी प्रैक्टिस में अगर वो पैक्ड यू का यू उसको दे रहे हैं, उसकी कॉस्ट उससे ले रहे हैं, तो वो सेल नहीं कहलाएगी, वो हमारा ट्रीटमेंट का पार्ट कहलाएगा. सेल होती है केमिस्ट के काउंटर से, जहां पर कि दवाओं की सेल होती है, क्योंकि उस केस में अगर आपसे कोई मरीज उसका बिल देने को कहेगा तो आप बिल तो नहीं दे सकते ना उसका. आपने जो इलाज किया है आप उसका बिल उसको दे सकते हैं, लेकिन एक प्रोडक्ट के बारे में अगर हम जैसे बात कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट का आप अलग से बिल नहीं दे सकते, वो सिर्फ केमिस्ट शॉप से मिल सकता है. तो आप उसको सेल, बेसिकली वो टेक्निकली सेल है ही नहीं. आप जिसको कह रहे हैं, चाहे वो पेटेंट प्रोडक्ट है बेशक, तो टेक्निकली वो सेल नहीं है. वो हमने अपने मरीज को जो दवाई दी है वो उसका पार्ट है, वो उसमें इंक्लूडेड है. तो आई थिंक इट्स क्लियर. जी सर, बिल्कुल. Now fifth question is, why most investigations has warning of not for medico legal purpose? बेसिकली होता ये है कि कई बार मरीज उन दस्तावेजों का दुरुपयोग करता है. ये वार्निंग इससे लिखी गई है. जैसे हम एक उदाहरण लें कि मियां बीबी में तलाक का मामला चल रहा है, और मैं अपने पेशेंट को कोई ऐसी प्रेस्क्रिप्शन दे दूं जिसमें हो कि भाई कोई वो गहरी उसको साइकोलॉजिकल साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, उसका इलाज मैं कर रहा हूं, तो उसमें दूसरा पक्ष उसका नाजायज फायदा उठा सकता है उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में प्रोड्यूस करके.
इसी तरह इन्वेस्टिगेशन की बात आती है कि उस इन्वेस्टिगेशन से भी, चाहे वो कोई खून का टेस्ट है, चाहे वो कोई रेडियोलॉजिकल टेस्ट है, उनका नाजायज फायदा उठाया जा सकता है। तो कोई पक्ष हमारे ट्रीटमेंट से, प्रिस्क्रिप्शन से, इन्वेस्टिगेशन से कोई नाजायज फायदा ना उठा पाए, उसके लिए ये वार्ड लिखा जाता है। Okay, sir. Thank you so much. Now, Ashish sir, from question number 6, please explain. Ashish sir has some questions. हाँ, जी, पूछे डॉक्टर आशीष। सर सिक्स क्वेश्चन है, कैन आई इशू अ मेडिकल सर्टिफिकेट टू गवर्नमेंट सर्विस होल्डर फॉर अ मंथ और मोर लीव? मतलब डेज मैटर करते हैं क्या, कि कितने दिन के लिए करना चाहिए या कितने दिन के लिए नहीं करना चाहिए, लाइक? मुझे लगता है शायद आपने लेट ज्वाइन किया है, क्योंकि मैं शुरू में ही इस प्रश्न का जवाब दे चुका हूं कि हम 3, 5 या 7 दिन का आमतौर पे मेडिकल देते हैं। हमें लगता है कि भाई अभी ट्रीटमेंट कुछ दिन और देना चाहिए, हम 1 हफ्ते का और रिपीट कर देते हैं, लेकिन इसके बाद हमें उसको हॉस्पिटल को रेफर करना चाहिए। मतलब बहुत लंबा, अगर आप जैसे महीनों की बात कर रहे हैं, तो वो प्राइवेट प्रैक्टिस जो है, एक प्राइवेट प्रैक्टिशनर को नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसमें जो एम्प्लॉयर है, वो एम्प्लॉयर इस बात का आधार बना सकता है कि एक झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट देकर मेरा एम्प्लॉय अपने काम करने से बच रहा है, जिससे कि डिपार्टमेंट को नुकसान हो रहा है। जी। लेकिन वो झूठा प्रूव करने के लिए बहुत सारे उसमें आगे मेडिकल बोर्ड बनता है, उसके सामने पेशेंट को प्रोड्यूस किया जाता है, उसमें सारा जी। रिकॉर्ड जाता है, नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन तो पूरा बोर्ड उसको री इन्वेस्टिगेट करता है। लेकिन हम उन चीजों में ना जाके हम सिर्फ इतना करें कि 3, 5 या 7 दिन का मेडिकल लें। हमें लगता है कि बहुत जरूरी है, इसका इलाज हम कर सकते हैं, तो 7 दिन का रिपीट कर दें। उसके बाद हम उस पेशेंट को 2 हफ्ते के बाद तो आगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल को रेफर करें। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांट टू नो अबाउट द रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट स्किन एंड हेयर केयर इन आयुष। दोबारा पूछें। वांट टू नो about the registration process of products regarding skin and hair care in Ayush. ओके, ये बेसिकली ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंडर एक मामला है, ये उसके पर्व्यू में आता है। तो चाहे वो किसी भी पैथी का कॉस्मेटिक्स है या कोई और ऐसा सौंदर्य प्रसाधन है, साबुन है, क्रीम है, शैम्पू है, वो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के पर्व्यू में आता है। तो उसके लिए आपको वहां अप्लाई करना होता है। जो ड्रग ऑफिस है आपका स्टेट का, जहां भी आप जा रहे हैं, दिल्ली है, हरियाणा है, यूपी है, हिमाचल है, तो वहां का जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स ऑफिस है, वहां पे आपको उस प्रोडक्ट के लिए अप्लाई करना। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, why majority of government bodies want a medical certificate by MBBS doctor? It has changed in few days, but still majority asking for MBBS doctor certificate. इसका जवाब मैं बहुत डिटेल में पहले ही दे चुका हूं। मुझे लगता है या तो आपने लेट ज्वाइन किया या आपने ध्यान से सुना नहीं है। नहीं नहीं सर, ये मेरे क्वेश्चंस नहीं है, ये एक्चुअली जो रजिस्टर्ड नहीं, मैं पार्टिसिपेंट थे ना उनके। जो कहना चाह रहा हूं, मैं इस बात का बहुत डिटेल्ड रिप्लाई दे चुका हूं, फिर भी दोबारा दोहरा देता हूं उसको मैं, कि आज की तारीख में जो 5 रिकॉग्नाइज्ड पैथी हैं इंडिया में, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, एलोपैथी, सोवा रिग्पा, उसका कोई भी रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेट इशू कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी एजेंसी को उसको नकारने का अधिकार नहीं है, और अगर वो उसको नकारती है तो उसके खिलाफ आप अपनी काउंसिल में
जो है रिपोर्ट करिए, तो उसका एक्शन लेंगे। आप अपनी एसोसिएशन को लिखिए, एसोसिएशन भी उनको अनुरोध कर सकती है कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि कानून सम्मत नहीं है और कानून की परिधि में रहकर आप कार्य करें। तो वो एक सेफ गार्ड हमें मिला हुआ, हम कोई भी सर्टिफिकेट इस तरह का इशू कर सकते हैं, कोई मना नहीं कर सकता उसे। जी थैंक यू सर। सर इसमें एक क्वेश्चन और भी है, want to know what are the things one should keep in mind if they are practicing in allopathy hospital as a homeopathic physician. आज की तारीख में सरकार ने ये कानून बनाया है कि किसी भी हॉस्पिटल में आयुष की विंग का होना जरूरी है, चाहे वहां पर आयुर्वेद का यूनिट हो, चाहे यूनानी का हो, होम्योपैथी का हो, सोवा का हो। किसी भी हॉस्पिटल में इनमें से किसी एक विंग का, कम से कम 1 से 2 विंग हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एक विंग का होना वहां पर जरूरी है। तो ये अगर आपको किसी हॉस्पिटल में शुरू करना है तो आप उस हॉस्पिटल में पूछें कि उनके यहाँ आयुष की क्या कोई यूनिट है। अगर नहीं है तो आप वहां पर वो यूनिट शुरू करना चाहते हैं तो वो आप कंसर्न यूनिट से ही बात करें और अपने जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, आपका रजिस्ट्रेशन है, वो सारी डिटेल देते हुए आप कंसर्न डिपार्टमेंट से, कंसर्न यूनिट से बात करें, वो उस तरीके से। जी सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन अ डॉक्टर प्रैक्टिस इन एनसीआर इफ दे आर रजिस्टर्ड इन दिल्ली बोर्ड? देखिए, आपका काउंसिल या बोर्ड आपको क्या अधिकार देता है ये उसके ऊपर आता है। जैसे मैं अगर बात करूं सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन की, जिसकी जगह कर अब आप देखते हैं कि नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन आ गया है, तो सेंट्रल काउंसिल के टाइम में वहां पर एक सेंट्रल रजिस्ट्रेशन इशू किया जाता था, जिसके आधार पर कोई भी पूरे हिंदुस्तान में प्रैक्टिस कर सकता था। हालांकि उसके लिए प्राइमरी जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि आपका किसी स्टेट में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आज की तारीख में जब से कमीशन बना है वो चीज खत्म है, यानी आज की तारीख में अगर आपको किसी स्टेट में प्रैक्टिस करनी है तो आपको उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है सर, थैंक यू। सर मैं इसको इंटरप्ट एक चीज पूछना चाहूंगी इसी को डिटेल में, कि अगर जैसे मोस्ट ऑफ द दिल्ली के जो डॉक्टर्स हैं वो विजिटिंग में गुड़गांव, फरीदाबाद, दिल्ली, नोएडा चाहते हैं और दे हैव देयर रजिस्ट्रेशन टू दिल्ली, तो अब जो उनका दूसरा सेटअप है उससे रिगार्डिंग फिर में अगर दोनों स्टेट्स में नहीं होती, आप 2 स्टेट्स में रजिस्टर नहीं कर सकते, देन व्हाट इज द इशू? तब आप उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? जैसे दिल्ली में है, अगर अब वो फरीदाबाद जा रहा है बिकॉज नियर बाय है, अब मैं इस चीज को अपने पे ही लेती हूँ, सर मैं नोएडा में भी जाती हूँ, मतलब एंड आई स्टे इन दिल्ली, आई एम दिल्ली रजिस्टर्ड, ठीक है। सो देन जब आई वॉज इन यूपी बिफोर माई मैरिज, देन आई वॉज रजिस्टर्ड टू यूपी, ठीक है, बट आई गॉट मैरिड इन दिल्ली एंड देन आई हैव अ सेटअप इन दिल्ली एंड आई रजिस्टर्ड माई सेल्फ इन दिल्ली। मेरा यूपी वाला खत्म हो गया, मैंने उसको 5 years का रिन्यू नहीं कराया, बट नाउ व्हाट कैन आई डू? देखिए, इसमें जो कानूनी परिस्थिति है वो तो यही है कि आप एक टाइम में एक स्टेट में रजिस्ट्रेशन करवा सकते ओके, हैं। तो कायदे से एक स्टेट के रजिस्ट्रेशन पर आप दूसरी स्टेट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। ओके, तो वैसे हम भारत सरकार से ही मांग कर रहे हैं कि भाई, अगर क्योंकि दिल्ली एनसीआर में इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है हाँ जी, कि लोग बीच में सिर्फ एक सड़क है, दिल्ली एक तरफ है, यूपी दूसरी तरफ है, अब दिल्ली दूसरा हरियाणा है। जी जी तो ऐसे केसेस के लिए हम सरकार से बात कर रहे हैं कि वो जो सेंट्रल रजिस्ट्रेशन था जी, वो दोबारा शुरू करें। श्योर सर। लेकिन सरकार उस पर क्या रुख अपनाती है ये तो भविष्य की बात है। ओके, अभी की जो कानूनी स्थिति है उसके अनुसार तो जहां आपका रजिस्ट्रेशन है आप गॉट सिर्फ वहीं इट, पे प्रैक्टिस कर
सकते। ठीक है सर ठीक है। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन था बीच में रिगार्डिंग अभी, कि जैसे आपने बताया कि हम कोई पेटेंट सेल नहीं कर सकते, बट जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ मेडिसिन हैं, ठीक है, हमने अपने प्रिस्क्रिप्शन के लिए रखी हैं, बट कई बार पेशेंट आता है जी हमारे को फॉर एग्जांपल ये टॉनिक खरीदना है, तो हम दे देते हैं बड़े आराम से कि हाँ जी लो जी, हम दैट पेशेंट इज नॉट कमिंग फॉर कंसल्ट अस, जस्ट टू बाय कि आपके पास ये मेडिसिन अवेलेबल है, एंड दे पे इट। सो व्हाट वी कैन डू ऑन दैट? हम क्या प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के ही दे दें उनको, वो बेटर है फॉर द लीगल पर्पस, या क्या करना चाहिए? नहीं, सबसे पहली बात तो ये आप उसको ये स्पष्ट कर दें कि ये क्लिनिक यहाँ से सेल नहीं होती है, तो आपको बिल नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि किसी तरह उसके बिल की पेमेंट हो जाए, तो आप उसको अपने लेटर हेड पे लिख दे। प्रेस्क्राइब कर दीजिए और ठीक उसका ठीक, अमाउंट लिख दीजिएगा कि भाई हमने इतने करेक्ट पैसे लिए, करेक्ट तो सेल नहीं कहलाएगी। करेक्ट करेक्ट, ठीक, बस मतलब ये। आप उस एक प्रोडक्ट का बिल ना देकर हम्म आप प्रिस्क्रिप्शन में लिखिए हम्म और चार्ज रुपीज दिस मच फॉर ट्रीटमेंट, हम्म। तो आप ट्रीटमेंट का पार्ट दिखा के तब आप उससे उतने पैसे चार्ज कर सकते हैं। लेकिन बेहतर तो ये कि आप इस पचड़े में ना पड़े, आप उसको क्लियरली बता दें कि देखो भैया, ये मेरे अपने मरीज के लिए है, ये सेल के लिए नहीं है। अगर आप चाहें तो बगैर बिल के मैं इसको आपको दे करेक्ट। सकती हूँ, आप इसके बिल मुझसे ना मांगे। अगर आपको बिल चाहिए तो फिर आप केमिस्ट शॉप पे जाइए। ठीक है सर, थैंक यू। सिंपल। हाँ थैंक यू सर। हाँ जी सर, यस सर, यस आशीष। जी मैम। सर एक इसमें क्वेश्चन है, डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब, आजकल ऐसा होता है डॉक्टर रील बना करके या यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पर मेडिसिन मेडिकल कंडीशन के बारे में मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं, तो इज इट ओके और इससे कुछ इश्यूज हैं? देखिए, वो बात हम बार बार दोहरा चुके हैं कि हम किसी तरह के एडवर्टीजमेंट अपने इलाज के बारे में नहीं करें। जो हो रहा है वो कायदे से गलत हो रहा है। अगर आज कानून उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि कानून उस पर कार्रवाई नहीं कर सकता। वो कभी भी कार्रवाई कर सकता है। तो हम कानून के दायरे में रहकर अपना काम करें। हम कोई ऐसा कार्य ना करें कि जिससे कल को हमें कोई परेशानी। वन मोर और कोई क्वेश्चन। प्रश्न है? हाँ जी सर, वन मोर सर, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस, एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अच्छा सर, एक क्वेश्चन ये है कि एक डॉक्टर ने पूछा है कि वांट टू नो अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर टेली और ऑनलाइन कंसल्टेशन। आजकल सर टेली कंसल्टेशन एंड ऑनलाइन कंसल्टेशन का प्रोसेस बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया है आफ्टर कोविड स्पेशली, तो उसके थोड़े से रूल्स बताइए सर। थैंक यू। यही पूछने वाला था मैं। अच्छा। आपका सवाल उन्होंने पूछ लिया। बेसिकली इसके लिए कोई अलग से रूल्स रेगुलेशन नहीं है टेलीमेडिसिन के लिए। वो जैसा आप अपने क्लिनिक में करते हैं, तो ऑनलाइन कंसल्टेशन वैसा ही है कि आपका मरीज अपनी बीमारी के बारे में आपको बताएगा, आप उसको एक प्रेस्क्रिप्शन इशू करेंगे, उसके बदले आप अपनी फीस उससे ले लें। तो इसके लिए अलग से कोई रूल रेगुलेशन नहीं। आप अपनी फीस जो है वो मतलब पहले बता दें तो अच्छा है। वो आपके उसमें ऑनलाइन उसमें रहना चाहिए कि भाई ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन जो है अवेलेबल है और ऑनलाइन कंसल्टेशन फीस ये, नहीं भी तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन इसके लिए कोई अलग कानून नहीं। सर मतलब उसमें हम ऐसा कर सकते हैं, वैसे तो जनरली करते हैं कि जैसे व्हाट्सएप के थ्रू या आपका कोई वेबसाइट है तो उसके थ्रू आपका जो प्रिस्क्रिप्शन लेटर है प्लस बिल आप सीधा भेज दो। सो अगेन दैट इज अ लीगल, एक लॉ आपने जो क्रिएट किया है ऑनलाइन कंसल्टेशन, वो चला जाएगा ऑन द लेटर हेड, है ना? ठीक है सर। एनी जीएसटी इज इन्वॉल्व इन कंसल्टेशन फॉर होम्योपैथ्स? जीएसटी अभी मेडिकल सर्विसेज पर लागू नहीं है। अच्छा ठीक है सर। और अभी तक सरकार ने शायद थोड़ा ख्याल रखा है कि मरीज का गला ज्यादा ना दबाया जाए। तो बिल्कुल सर, नहीं जो जरूरी। मेडिकल कंसल्टेशन है
वो भी जीएसटी के दायरे में नहीं आती है। ठीक है सर। तो ये हमारे लिए भी अच्छी बात है, मरीज के लिए भी अच्छी बात है कि मरीज पर अनावश्यक भार सरकार ने नहीं डाला है। नहीं तो मरीज सरकार को तो कुछ कह नहीं सकता, वो कोसेगा हम डॉक्टरों को भी। तो नहीं, अभी थैंक यू। फिलहाल कोई उस पर टैक्स लागू नहीं। जी सर। सर जैसे ही वो एडवर्टाइजमेंट वाला हमने क्वेश्चन रखा था, एक ऐसे ही क्वेश्चन रिगार्डिंग द लेटर हेड एंड विजिटिंग कार्ड भी है, सिमिलर क्वेश्चन, कि जैसे जनरली हम विजिटिंग कार्ड के पीछे डिजाइन लिख देते हैं, ट्रीटमेंट अंडर दिस दिस दिस, एंड लेटर हेड में साइड में हम डिजाइन कर देते हैं डिजीजेस के नाम। सो तो उस पे नहीं करना चाहिए ये, मतलब, है ना? ठीक है, ठीक है सर। बेसिकली अगर आपका हॉस्पिटल सेटअप है तो आप अपने सर्विसेज बता सकते हो, वो सब नहीं बता सकते, कोई डिजीज रिलेटेड कुछ नहीं बता सकते। ठीक है, ठीक है सर। एनी अदर क्वेश्चन डॉक्टर प्रतिमा एंड आशीष सर एंड कल्पना जी? एक क्वेश्चन था कि कुछ डॉक्टर्स मेरे नॉन में हैं जिनके पास 2 स्टेट के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स हैं। हालांकि आपको मिलता नहीं है जब तक आप जो है पुराना वाला आप सबमिट ना करो। तो सर ये कहाँ तक सही है 2 स्टेट के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स रखना? कहाँ तक सही है, कहाँ तक देखिए, ये गलत? कानून में गलत है, क्योंकि जब आप नए रजिस्ट्रेशन में जाते हैं तो आपका पुराना वाला जमा करा के वहां से एनओसी लेना चाहिए, उसके बाद आपको नई जगह पर अप्लाई करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि पुराने को भी चालू रखते हैं और नया भी करवा लिया। हालांकि आपकी जो काउंसिल है, जो आपका कमीशन है, वो इसकी इजाजत नहीं देता, तो कानूनन वो सही नहीं है। तो ये प्रैक्टिस कायदे से खत्म होनी चाहिए। जी सर। आपको एक ही जगह का, एक ही जी स्टेट का बिल्कुल रखना सर। चाहिए। डॉक्टर कल्पना मैम, आई थिंक यू हैव सम क्वेश्चंस लिस्ट। मैं एक सर क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ रिगार्डिंग कि ये, मतलब, हम बहुत फेस कर रहे हैं, जैसे रील्स वाला क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस किए। ज्यादातर आजकल फार्मेसी वाले जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के होम्योपैथिक मेडिसिन इजीली दे देते हैं। अब जैसे बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम वगैरह पे देखा जी, फलाना मेडिसिन ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल सल्फर ले रहे हैं, इजीली अवेलेबल मेडिसिन जो हैं फलानी डिजीज के लिए, ऐसा। तो क्या उस पे कोई रूल बन सकता है या हम कोई आगे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इजीली होम्योपैथिक मेडिसिन पब्लिक में चली जा रही हैं। तो एनी रूल्स फॉर दैट कि प्रिस्क्रिप्शन के बिना फार्मेसीज भी नहीं बेचेंगे मेडिसिन? देखिए, अगर हम एलोपैथी की बात करें, वहां पर ऑलरेडी जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है वो लागू होता है, और उसमें बताया जाता है कि बगैर प्रिस्क्रिप्शन के आप दवाई नहीं देंगे, और वहां भी खुलेआम दी जा रही है। जी। तो इसमें कानून तो गलत है ही। सरकार से भी हम कोई ऐसा कानून की अगर बात करें तो वो कानून पहले से ही मौजूद है। हम उन कानूनों के अंतर्गत एक्शन लेने की बात करें तो जैसा नो स्मोकिंग के बारे में हमने जिक्र किया था, तो सरकार में भी एक पक्ष देखा जाता है कि डॉक्टर जो हैं वो बहुत ज्यादा फीस लेते हैं, दवाइयां महंगी देते हैं, और गरीब मरीज है उसके हित के लिए अगर उसको कहीं से दवाई मिल रही है तो एक्शन आमतौर पे नहीं लेती, सरकारें आके मुंह रहती। तो कुछ चीजों का मतलब शायद कोई हल नहीं है। सर इसी पे मैं एक, मतलब, हम कई बार सोचते हैं, डिस्कस करते हैं कि इन होम्योपैथी ऑल्सो वी हैव अ वेराइटी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन चार्जेस। मतलब आपने देख, ठीक है, एक्सपीरियंस विद इयर्स ऑफ ईयर एक्सपीरियंस, डॉक्टर अपना प्रिस्क्रिप्शन चार्ज बढ़ा लेता है, एब्सोल्युटली एग्री। बट जैसे कई बार क्या होता है, चैरिटेबल में जो 50 रुपए की दवाई है वो मिल रही है, ठीक है, दैट इज चैरिटेबल, और कई डॉक्टर्स कम रेंज में रखते हैं, और कई डॉक्टर्स 1 वीक के 2000 से भी प्लस चार्ज लेते हैं। तो इट इज, क्या इस पे कोई
ऐसा लॉ आने वाला है या हो सकता है कि हमें बेसिक रखना चाहिए, जिससे जो जूनियर्स, जो नए डॉक्टर्स हैं, उनको भी लगे कि हाँ इतना तो मुझे पैसा मिल जाएगा, और जो बहुत ज्यादा चार्ज करे उनको भी थोड़ा नीचे आना पड़ेगा, ऐसा कुछ समथिंग इज देयर? देखिए, जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है उनकी लॉबी बहुत स्ट्रांग है। हम्म। हालांकि पार्लियामेंट में ये बात उठी थी पीछे, और ऐसा डिस्कशन में आया था कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन जो चाहिए होता है वो हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं होता। तो मुझे नहीं लगता कि वो जो कॉर्पोरेट सेक्टर के 5 स्टार हॉस्पिटल्स हैं उनकी लॉबी कोई ऐसा कदम सरकार को इतनी आराम से उठाने देगी। तो फिलहाल तो यही है कि भाई जिसकी जैसी मार्केट वैल्यू उसके हिसाब से वो चार्ज करे। अगर मैं समझता हूँ मैं 500 रुपये चार्ज कर सकता हूँ तो भाई मेरे पास भी पेशेंट आ रहा है। मैं समझता हूँ मेरी फीस 50 रुपया है गरीबों के लिए, तो मेरे पास भी पेशेंट आ रहा है। तो इस सवाल का तो ये तो बहुत पेचीदा सवाल है, और शायद इसका हल निकट भविष्य में तो नहीं होना। लास्ट एक क्वेश्चन, आई थिंक हम एंड करेंगे अब, आप हमने आपका बहुत टाइम लिया सर। कई बार हम सप्लीमेंट्स लिख देते हैं प्रिस्क्रिप्शन के साथ, एंड दैट सप्लीमेंट्स आर एलोपैथी, लाइक फॉर एग्जांपल विटामिन डी ले लीजिए, B12 ले लीजिए, विच इज इंपॉर्टेंट, विद हमारे रिजल्ट्स भी बहुत इंप्रूव होते हैं। तो क्या वो होम्योपैथ कर सकता है, या हमें सिर्फ होम्योपैथिक सप्लीमेंट्स ही अलाउड है? कायदे से तो आपको अपनी पैथी के सप्लीमेंट्स लिखने चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी पैथी में कोई चीज है और कोई चीज नहीं है, लेकिन क्योंकि उनकी वो चीज ज्यादा प्रचलित है, मार्केट में इजीली अवेलेबल है, और पेशेंट आगे इंसिस्ट करता है कि साहब देखिए मैं इलाज तो आपका करवा रहा हूँ पर मेरे खून में विटामिन डी कम है, तो आप विटामिन डी मुझे लिख दीजिए। तो ठीक है आप सर। उसको एक प्रिस्क्रिप्शन ठीक है सर। तो अपनी दें, एक प्लेन पेपर पे आप उसको विटामिन डी लिखिए, विटामिन डी तो एक प्लेन पेपर करेक्ट पे भी लिखा हुआ मिल जाएगा उसको। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो ठीक हम है। अपने आप को अपने तक सीमित रखें, पर हम ये क्लियर करें कि भाई हम अपनी प्रति जो हमारी पैथी है उसके प्रति हम बिल्कुल कमिटेड है, हम उसी में काम कर रहे हैं। ठीक है सर। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन, आई एम सॉरी, जैसे बहुत सारे होम्योपैथ्स जो हैं वो RMOs बन जाते हैं सर, ठीक है, एंड बिकॉज फॉर द जॉब एंड अर्निंग पर्पस इट इज इजी, सो टेक्निकली वो नहीं होना चाहिए, है ना? ठीक है। बहुत सारे सर प्रैक्टिशनर्स हैं कि, और एलोपैथिक डॉक्टर्स उनको ले भी लेते हैं बहुत इजीली। आई थिंक सिर्फ इन महाराष्ट्र इट इज अलाउड with 1 year of diploma of doing the advanced course of allopathy, and but all over India it is not allowed. देखिए हेल्थ जो है वो एक ऐसा मैटर है जो दोनों के परव्यू में आता है, स्टेट के भी और सेंटर के भी। जी। केंद्र सरकार भी हेल्थ पर कोई कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है। ठीक है सर। तो कुछ राज्य सरकारों ने, खासकर महाराष्ट्र ने, अपने प्रैक्टिशनर्स को बहुत सारे अधिकार दिए हुए हैं जो किसी भी और राज्य में नहीं। करेक्ट। चाहे वो हमारी होम्योपैथी की बात करें, आयुर्वेद की बात करें, यूनानी की बात करें, तो महाराष्ट्र का उदाहरण अपने आप में बिल्कुल एक अनोखा उदाहरण है कि वहां पर हमारे नॉन एलोपैथ प्रैक्टिशनर को बहुत सारे अधिकार मिलते। अब सवाल ये कि जब हम किसी भी एलोपैथी के सेटअप में काम कर रहे हैं तो हमें दवाई तो उसकी लिखनी पड़ेगी, और जब भी कोई कैजुअलिटी हो जाती है उसका दोष मर दिया जाता नॉन एलोपैथ डॉक्टर। ठीक है, हमारे यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है, नौकरियां नॉन एलोपैथ डॉक्टर के पास चांसेस कम है, इसीलिए वो RMO की नौकरी ले लेते हैं। लेकिन कानून तो उनको अलाउ नहीं करता कि वो एलोपैथी की दवाई लिखें। कुछ स्टेट में अलाउड है, जैसे महाराष्ट्र में अलाउड है, दिल्ली की बात हम करें
तो दिल्ली में आयुर्वेद प्रैक्टिशनर को, यूनानी के प्रैक्टिशनर्स को अलाउड है, लेकिन जहां पर अलाउड नहीं है वहां पर अगर कोई ऐसी बात आती है तो फिर वो उसी डॉक्टर पर डाल दी जाती है और जो हॉस्पिटल का या नर्सिंग होम का ओनर है वो साफ बच के निकल जाता है। ठीक है सर। तो ये हमें भी देखना है कि हम भविष्य में अपने लिए क्या करना चाहते हैं। अभी तक नॉन एलोपैथिक डॉक्टर आरएमओ की नौकरी कर रहे थे, लेकिन कोरोना के बाद स्थिति में बदलाव आया है। आयुर्वेद को, यूनानी को, होम्योपैथी को लोग अब स्वीकार कर रहे हैं, उनके जो इलाज हैं उसके लिए आ रहे हैं। तो हम अपने लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक फील्ड तैयार करें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा करेक्ट। बनिस्बत इसके कि हम किसी छोटी सी नौकरी के लिए किसी दूसरी पैथी के डॉक्टर के पास जाएं। अब पारंपरिक चिकित्साओं में बहुत अपॉर्चुनिटी के बहुत मौके हैं और ये जो कोरोना के बाद एक मौका आया है, हमें इस मौके का पूरा लाभ उठाना चाहिए अपने सिस्टम के फायदे के लिए, अपने प्रैक्टिशनर्स के फायदे के लिए। जी सर। तो हम अपनी प्रैक्टिस को ऊंचा उठाएं, हम पब्लिक अवेयरनेस करें, हम फ्री मेडिकल कैंप लगाएं, हम और तरीके अपनाएं पब्लिक को अवेयर करने के लिए कि हाँ मेरी पैथी में इस बीमारी का अच्छा इलाज है, आप मेरी पैथी के डॉक्टर्स के पास आए। तो वो एक मैं कहूंगा कि इस जो पीढ़ी हमारी है, ये हमारी जिम्मेवारी भी बनती है कि हम इस मौके का फायदा उठाएं और अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए भी और अपने वर्तमान जो साथी चल रहे हैं उनके लिए भी इस फील्ड में कुछ अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की कोशिश करें। जी सर। नहीं सर, थैंक यू। इट इज वंडरफुल। एनी क्वेश्चन लेफ्ट? हम लास्ट 1 और 2 क्वेश्चन ले सकते हैं। आई थिंक सर हमने आपका बहुत टाइम ले लिया। वी आर रियली सॉरी एंड वेरी थैंकफुल फॉर योर डीप इनसाइट। हमारे सर ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, चाहे हम जितने साल भी प्रैक्टिस कर ले, बट होता क्या है, हम सिर्फ मार्केट को देखते हैं और हम उसको कॉपी कर लेते हैं एंड सिर्फ बिना सोचे समझे कि इसके पीछे कितना लीगल है। जैसे आज आपने एडवर्टाइजमेंट वाली बात बोली, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हम सब प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स एंड प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स को मार्केटिंग करनी रहती है। हम पैम्फलेटिंग भी करते हैं, हम कैंप्स भी लगाते हैं जस्ट टू इंक्रीज आवर ओन प्रैक्टिस। सो आपने जो बातें बताई ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई थिंक हम एज अ एबीसीए हम जो जुड़े हैं प्रजापति सर के अंडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे सारे होम्योपैथ्स को ये नॉलेज डीप रूटेड रहेगी, तो हम आगे भी अपने जूनियर्स को ये चीज बता सकते हैं कि ये आर द टर्म्स एंड कंडीशंस व्हिच इन अंडर दिस यू हैव टू प्रैक्टिस इन अ प्रॉपर लीगल वे। अभी तक तो मैं कानून की बात कर रहा था, अब मैं अगली बात पे आता हूँ। ठीक है। हर कानून में कुछ कमियां होती हैं, लूपहोल्स होती हैं, हम उनका फायदा उठाते हैं, सब उठाते हैं, हम ही क्यों पीछे रहें। जब मिस्टर एक्स एडवर्टीजमेंट कर रहा है और सरकार कुछ नहीं कह रही, मिस वाई भी ऐसा कर रही हैं, उनको नहीं कह रही, तो भाई मैं ही क्यों घाटे में रहूं। तो लूपहोल्स की बात अगर हम करें, हालांकि इथिकल नहीं है बात करना, लेकिन चूंकि प्रैक्टिशनर्स की बात है, अपने एसोसिएशन की बात है, तो वहां पर मैं आपको ये कहूंगा कि आप कैंप लगाएं, फ्री मेडिकल कैंप, मंथ में, 2 मंथ में, 3 महीने में, 4 महीने में, साल में, और वहां पर आप ये लिखें उस पैम्फलेट में कि कैंप में इन बीमारियों का इलाज विशेष रूप से किया जाएगा। तो इलाके के लोग ये जान पाएंगे कि हाँ इस बीमारी का इलाज आप कर रहे हैं। लेकिन वो सिर्फ फ्री मेडिकल कैंप के लिए रहेगा कि ये डॉक्टर फ्री मेडिकल कैंप लगा रहा है और उसमें इन बीमारियों का इलाज विशेष रूप से किया जाएगा। करेक्ट। तो वो जो आपका एक पैम्फलेट घर घर जाएगा, चाहे आप वो सोशल मीडिया पर ही करें, वो भी लोगों की जानकारी में आएगा, तो लोग ये जान पाए कि हाँ इस बीमारी का इलाज हम करते हैं। ठीक है,
तो वो आप कान को पीछे से ले जाके पकड़े, सीधा ना पकड़े। नहीं सर, ठीक है। थैंक यू। नहीं, बहुत और बहुत कई बार इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। यस यस, कई बार इथिकल बातों के अलावा भी हमें बहुत सारी बातें करनी पड़ती हैं, करेक्ट, अपने घर में ही कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो उसी दायरे में रहकर हम करें। हम्म, फिर भी मैं कहूंगा कि हम इथिकली करें, जो भी कुछ करें, नॉन इथिकल ना करें। ठीक है सर। और मेरे ठीक। को लग रहा है कि हमारे पार्टिसिपेंट को बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चंस आते जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास बहुत ही लिमिट टाइम है। एक्चुअली वेबिनार का टाइमिंग जो है 1 to 2 ही था। तो नहीं, अगर कुछ क्वेश्चन आप लेना चाह रहे हैं और आपका सिस्टम अलाउ कर रहा है अभी आपको और टाइम के लिए, तो कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सर। तो ले लीजिए मैम क्वेश्चन। कल्पना मैम, आप पूछना चाह रहे थे? हाँ जी सर। सर, हमारे पार्टिसिपेंट्स डॉक्टर्स में से पूछा है किसी ने, कैन यू टेल अबाउट द थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग फॉर आयुष, व्हाट आर द प्रोटोकॉल्स? अगेन इट कम्स अंडर द पर्व्यू ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो जो ड्रग ओके, ऑफिसर आपका, ड्रग कंट्रोलर है, आप इस बारे में उनसे बात करें, क्योंकि इट इज नॉट रिलेटेड टू द मेडिकल प्रोफेशन, रादर इट इज कम्स अंडर द पर्व्यू ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो ये आप ड्रग कंट्रोलर से इस बारे में बात करें, या उनकी वेबसाइट पे जाके आप चेक करेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ओके सर, थैंक यू सर। सर, वैसे तो ये क्वेश्चन सभी को पता है, बट फिर भी एक बार पूछ लेती हूँ कि पूछा है, दीज विटामिन डी एंड B12 कम अंडर न्यूट्रास्यूटिकल, सो कांट वी कीप देम इन आवर क्लिनिक्स? देखिए, विटामिन की जहां तक बात है, तो विटामिन की उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि भाई उस पर कानून, शेड्यूल एच में वो दवाइयां नहीं आती हैं जो कि पर्टिकुलरली रिस्ट्रिक्टेड हैं एलोपैथी की। तो फिर भी मैं कहना तो यही चाहूंगा कि हम अपनी पैथी की बात करें। हमारी पैथी में जो विटामिन डी से रिलेटेड आइटम है, हम वही रखें, और वो एक प्लेन पेपर पर बाहर से लिख दें। क्या हमारी पैथीज में नहीं है? जितने भी सर, विटामिन हैं हमारी पैथी में कुछ ना कुछ ऐसी दवाइयां मौजूद हैं, या हम सप्लीमेंट्स के बारे में बोल सकते हैं, हम डाइट के बारे में बोल सकते हैं, जिसे विटामिन डी मिलता है। तो इथिकली हम कहेंगे कि आप अपनी प्रैक्टिस ही करें, अपनी पैथी में जो आपको लगती है। ओके, थैंक यू सो मच सर। कंटिन्यू डॉक्टर नेहा। हाँ सर, बस एक क्वेश्चन है, एक और आया है कि हम आउट ऑफ इंडिया प्रैक्टिस जैसे आजकल कर रहे हैं, तो हाउ टू सेंड मेडिसिन आउटसाइड? जैसे लिक्विड पे तो लिमिट्स होती हैं, ग्लोब्यूल्स में चली जाती है, जैसे मैंने कई बार दुबई वगैरह मेडिसिन भेजी हैं, बट बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, आपको सब कुछ अपना डिटेल सब देना पड़ता है, प्रिस्क्रिप्शन, आधार कार्ड एंड ऑल एवरीथिंग। तो इससे रिगार्डिंग थोड़ा सा रूल एक बता दीजिए, बिकॉज कई डॉक्टर्स बाहर भेजने में झिझकते हैं मेडिसिन। इसमें दो बातें हैं। आप डॉक्टर हैं, आप इंडिया में बैठे हैं, इंडिया के कानून अलग हैं। आपका पेशेंट किसी और कंट्री में बैठा है, उसका कानून अलग है। डॉक्टर प्रतिमा का पेशेंट किसी और कंट्री में, उसका कानून अलग है। डॉक्टर आशीष का पेशेंट किसी और कंट्री में, उसका कानून अलग है। डॉक्टर कल्पना का पेशेंट कहीं और बैठा है, उसका कानून अलग है। डॉक्टर प्रजापति का पेशेंट किसी और कंट्री में बैठा, उसका कानून अलग है। तो ये जिस कंट्री में आप दवाई भेज रहे हैं, वहां का कानून देखना पड़ेगा और उनका पालन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि सभी कंट्रीज में कानून एक जैसे नहीं। तो जिस कंट्री में आप दवाई भेज रहे हैं, बेसिकली वहां के कानून के अकॉर्डिंगली चलते हुए आपको उनका पालन करने की जरूरत। तो वहां की आप वेबसाइट पे जाएं, उनके कानून को देखें, उसके अकॉर्डिंगली फिर आप अपने करें। थैंक यू सो मच सर, एंड इट वाज रियली वंडरफुल, एंड बहुत डीप इनसाइड आपने हमें बहुत सारी चीजें बताई। एंड हम आपसे फिर से कोशिश करेंगे कि अगर हमारी क्वेश्चंस फिर आएंगे तो हम आपको फिर से बुलाएंगे। और हमें बहुत बहुत ज्यादा खुशी मिली आपके साथ जुड़ने से, और प्रजापति सर ने आपसे हमें इंट्रोड्यूस कराया। थैंक यू सो मच सर। एंड अभी मैं प्रजापति सर को बुलाना चाहूंगी एक बार। सर, प्लीज कम एंड फेलिसिटेट सर, प्लीज।
Thank you so much, sir, for देखिए, sharing your बहुत ही अच्छे तरीके से और सारे क्वेश्चन डॉक्टर पराशर सर ने टच कर दिए और मुझे मेरे लिए कुछ छोड़ा नहीं। आपने सब कुछ मेरी तरफ घुमा दिया, आप तो बच ही गए। तो बहुत ही सुंदर जानकारी, और मैं ये मानता हूँ कि ये बातें जो हैं बहुत ही कम लोगों को पता थी, और कि इस प्रकार से जो हमारे इथिक्स हैं, हमारे रूल्स हैं, और कुछ जो जोड़ा डॉक्टर साहब ने बड़ी बखूबी तरीके से उन्होंने उनके जवाब दिए, जैसे हमारे एडवर्टाइजमेंट हैं और हमारे अधिकार हैं, हमारी प्रिस्क्रिप्शन है, उनको मैं मानता हूँ हमें सुधार करने की जरूरत है। हमारे पुराने जो पुरानी जो चली आ रही है नीति, उसमें नई नीति से हमें बदलाव करने की जरूरत है, हमें उसको अपनाने की जरूरत है, क्योंकि हम भी एक ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं कि हम समुदाय की सेवा करेंगे, तो उसी प्रकार से हमें कानूनी रूप से चलना चाहिए, और यदि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसके लिए भी हमें एक रहना चाहिए। तो मैं ये मानता हूँ कि डॉक्टर साहब ने बहुत सुंदर जानकारी और बड़ी बखूबी से उन्होंने सब क्वेश्चन का जवाब दिया, और डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये एक छोटा सा एक सर्टिफिकेट जो याद रहेगा हमें एबीसी परिवार को, और मैं ये मानता हूं कि हम एक बार और ऑफलाइन हमें इस कार्यक्रम को करने की जरूरत रहेगी, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट हैं, ये हमें पूरी देश में इसे फैलाने की जरूरत है। जिस अनभिज्ञता के साथ हमारे डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं उन तक ये बात पहुंचे। ये एक ऐसा विषय है जिस विषय में हमने सीएमई कोई अभी तक करी नहीं थी, और इसकी जानकारी जो डॉक्टर पराशर सर ने दी, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोग एक बार तालियों से डॉक्टर पराशर सर का अभिनंदन करें, और दोबारा से मैं चाहूंगा कि एक बार ऑफलाइन इस कार्यक्रम को किया जाए, ताकि 1-to-1 क्वेश्चंस जो है उनके जवाब उन तक पहुंचे। नहीं आएगा, नहीं आ रहा। यहाँ पर मेरा भी एक सुझाव है डॉक्टर प्रजापति जी आपके लिए, जी, कि ये जो प्रैक्टिस का मुद्दा है एक से ज्यादा स्टेट्स में, तो इसको हम सभी एसोसिएशंस अपने अपने लेवल पे अपनी काउंसिल्स और गवर्नमेंट के साथ टेकअप करें कि एक सेंट्रल रजिस्ट्रेशन का प्रावधान हो, ताकि हम एक रजिस्ट्रेशन के बाद पूरे हिंदुस्तान में प्रैक्टिस कर सकें। तो ये मैं समझता हूँ कि ऐसा था पहले, अभी 2 वर्ष पहले ऐसा था, जो सीसीएच के द्वारा यानी केंद्रीय होम्योपैथी काउंसिल के द्वारा एक सर्टिफाइड डॉक्टर है, रजिस्टर्ड डॉक्टर है, तो पूरे देश में प्रैक्टिस कर सकता है। पर अभी क्या है कि स्टेट को दे दिया गया है, जिस स्टेट में चिकित्सा कर रहा है उस स्टेट में उसको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है। रही बात 2 स्टेटों की, कि ये तो जब से तीनों कमीशन बने हैं, काउंसिल्स को खत्म करने के बाद जो 3 कमीशन बने हैं, होम्योपैथिक कमीशन है, मेडिकल कमीशन है और NCISM है, जब से तीनों काउंसिल खत्म करके एक कमीशन बनाए गए तब से ये समस्या आई है। तो वही मैं चाहता कि हम सभी पैथी के लोग अपनी अपनी कमीशन से बात करें और सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करें कि उस जो एक फैसिलिटी मिली हुई थी उसको दोबारा शुरू किया जाए। होम्योपैथ में तो डॉक्टर साहब ये किया गया है एनसीएच में कि यदि आप 2 स्टेटों में बैठ रहे हैं तो एक स्टेट का आपके पास रजिस्ट्रेशन है, तो दूसरे स्टेट को आपने एक एप्लीकेशन देनी है कि मैं इस दिन इस जगह पर बैठता हूं, तो वो एक सर्टिफिकेट आपको जारी कर देते हैं। वो रजिस्ट्रेशन स्थायी नहीं होता, अस्थायी रजिस्ट्रेशन कहलाता है। ये पिछले 2 साल से चल रहा है। हमें उस स्टेट में बैठने के लिए एक एप्लीकेशन देनी होती है। रजिस्ट्रेशन हमारा किसी और स्टेट का है,
पर जिस स्टेट में हम यानी 2 जगह बैठ रहे हैं तो उस दूसरी जगह पर भी हमें उनको सूचित करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और हम प्रयास करें कि एक सेंट्रल रजिस्टर हो जाए तो फिर ये समस्या इस तरह ही खत्म हो जाएगी। जी 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 बिल्कुल। थैंक यू प्रजापति प्रतिमा सर। जी सर्टिफिकेट, नेहा जी हाँ हाँ जी। बहुत सुंदर। सर पहले हम आपको भी थोड़ा फेलिसिटेट ही नहीं, करना चाहते आपने हैं। डॉक्टर साहब को ही सारा वो वैसे बहुत इंटरेस्टिंग रहा, डॉक्टर साहब ने सारे बहुत बिंदुवार इंटरेस्टिंग सर, चर्चा बहुत करी, इंटरेस्टिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। और हाँ, और ये सब तक कैसे पहुंचे आप डॉक्टर रिकॉर्ड करे होंगे आशीष जी, और सबका लिंक बना के। और मैं डॉक्टर पराशर साहब, डॉक्टर सर आपकी आवाज कट गई है। एक्चुअली सर शायद नेटवर्क एरिया में नहीं है। बट सर का प्लीज सर्टिफिकेट एक बार स्क्रीन पे प्लीज शो कर दीजिए। ये हम सब की तरफ से एज ऑल द एबीसीए मेंबर्स हम प्रजापति सर को भी फेलिसिटेट करना चाहते हैं। तो आशीष सर प्लीज शो दैट सर्टिफिकेट टू एवरीवन एंड आई रियली वांट टू थैंक प्रजापति सर एज वेल। आई थिंक सर नेटवर्क रेंज से थोड़ा सा बाहर हो गए हैं। And this is the certificate for Prajapati sir from all of us. Thank you so much, sir. And yes, ma'am. Now you can continue, ma'am. Thank you. Now I would like to call Mr. Akhilji and his team. Sir, please explain more about DRCFO app to our participant. Ma'am, excuse me, they are not available right now. Okay. Okay. बट मैम मैं बताना चाहूँगा, जो DRCFO ऐप ABCA प्रोवाइड करवा रहा है अपने मेंबर्स को, ये जो अभी हमने कानून व्यवस्था की सारी बात करी, ये इसके काफ़ी हद तक बहुत करीब हम पहुंच जाते हैं जब हम ऑनलाइन प्रैक्टिस को करते हैं, क्योंकि हमारे सारे जो डाटा है वो जनरेट भी होता है और हम प्रेस्क्रिप्शन को पेशेंट्स के साथ बहुत इजीली शेयर भी कर पाते हैं। तो ये बहुत मतलब जिसे हम कहते हैं आने वाले टाइम में यूजफुल रहेगा। सेकंड थिंग, जो DRCFO है उसने अपने प्लेटफॉर्म को होम्योपैथी के बड़ा मतलब नज़दीक ला करके बनाया है। अभी ये जो नया वर्जन उन्होंने बनाया है उसका मैंने डेमो देखा था, अभी वो आ नहीं पाए और नेक्स्ट मीटिंग जो हम रखेंगे तो उसमें वो डेमो देंगे उसका। जो सेकंड वर्जन उन्होंने बनाया है इट्स वेरी नियर टू होम्योपैथी, जैसा हम रेडार वगैरह यूज करते हैं उसके जैसा उन्होंने उसको किया है। तो वहाँ पे हम जैसे सिम्टम्स वगैरह पेशेंट्स के नोट कर लेते हैं, वो रूब्रिक जनरेट करके मेडिसिन पे सेलेक्ट करके देता है AI सॉफ्टवेयर के द्वारा, और मैन्युअली भी हम उसको कर सकते हैं। इट्स वेरी यूजफुल। अभी हमारे पास डेमो नहीं है, वरना आप और अच्छा लगता, लेकिन नेक्स्ट मीटिंग में हम उसको डेमो रखवाएंगे। ठीक है सर, हम लोग नेक्स्ट वेबिनार में DRCFO ऐप के लिए रखेंगे, और मैं भी उस ऐप को यूज कर रही हूँ, तो दिस इज वेरी यूजफुल ऐप। Now we all are moving ahead toward the end of this webinar, and I appreciate you all for your valuable time and making this webinar fruitful and successful. Okay. प्रजापति सर आप कुछ कहना चाहते हैं? डॉक्टर पराशर जी। जी डॉक्टर पराशर जी, सुन अपनी जो कुछ ना 8-10 जो न्यूज़पेपर की कटिंग है वो डॉक्टर प्रतिमा को या नेहा को या मुझे भेज दीजिएगा, ताकि हमारे जो मेंबर्स हैं वो थोड़ी सी जानकारी जो मांगते थे कि डॉक्टर पराशर जी के बारे में क्या है, तो मैं चाहूंगा कि आप वो कटिंग वगैरह जो है ना कुछ न्यूज़पेपर वो मुझे प्रतिमा को या नेहा को तो ग्रुप में डाल दें। ठीक है डॉक्टर प्रजापति और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके साथियों के साथ मुझे रूबरू होने का मौका मिला इस वेबिनार के माध्यम से, और उनके जो सवाल थे उनका मैं निराकरण कर पाया। हम चूंकि एक ऐसे समाज से ताल्लुक रखते हैं जहां हेल्थ एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और वो भी हम चूंकि आम आदमी के चिकित्सक हैं, तो आम आदमी के आम चिकित्सकों के लिए हम जो कर सकते हैं वो हम प्रतिबद्ध हैं, उसके लिए कमिटेड हैं, और वो हम करते रहेंगे। इस तरह का सहयोग हमें एक दूसरे से चाहिए, और वो हम एक दूसरे को इस तरह प्रदान करते रहें, ये मेरी इच्छा है। और इसके साथ ही हम
अपने जो एसोसिएशन के मेंबर्स हैं उनके कल्याण के लिए जो भी कदम उठाएं, उसमें हम उनको वो पूरी जानकारी दे सकें जिसकी उन्हें पता नहीं है, और इस तरीके से वो अपनी प्रैक्टिस में अच्छी तरीके से कार्य कर सके। ये हमारा आज का इस वेबिनार का लक्ष्य था और मैं समझता हूँ इसमें हम काफी हद तक सफल रहे हैं। और ऐसे कार्यक्रम अपने संगठन के लोगों के लिए लगातार होते रहने चाहिए ताकि हमारे लोग हम इसको ना ऑफलाइन हम करेंगे, इस वेन्यू को लेकर के बड़े अच्छे स्तर पर करेंगे, है ना। तो आपकी इसमें सेवाएं लेंगे, आप एक दिन समय निकालिएगा और बड़ा अच्छा लगेगा। और ये जो दिल्ली से जो एक संदेश जाएगा पूरे देश में, मैं मानता हूँ कि ये बहुत अच्छी जानकारी जाएगी डॉक्टरों को। ठीक डॉक्टर प्रजापति, मैं और आपकी टीम से अब विदा लेना चाहूंगा, फिर मिलते हैं। थैंक यू धन्यवाद। सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, नमस्ते सर। नमस्कार। थैंक यू। मैम हमारे सारे पार्टिसिपेंट को जो सर्टिफिकेट्स हैं वो ईमेल के थ्रू चला जाएगा। ईमेल के थ्रू नहीं जाएगा मैम, हम सर्टिफिकेट जो जो हमारे प्रेजेंट हैं हमारे रजिस्टर्ड एंड दोज हु आर प्रेजेंट, हम उनका सर्टिफिकेट डिजाइन करके क्लाउड में डाल देंगे एंड दे कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर। सो ये बाय टुमारो हम इसको अपडेट कर देंगे। प्लस हमारा जो ये वेबिनार है, ये रिकॉर्डेड वेबिनार विल पुट ऑन आवर यूट्यूब चैनल ऑल्सो। सो प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारा यूट्यूब सोशल मीडिया चैनल्स जितने भी हैं उनको सब्सक्राइब भी कर लीजिए एंड फॉलो भी कर लीजिए, सो दैट ऐसे इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं एज अ एबीसीए टीम। सो उसका पार्ट बनने के लिए थैंक यू एंड प्लीज अपने लेवल पे भी प्रमोट कीजिए इस एसोसिएशन को, सो दैट ज्यादा से ज्यादा होम्योपैथ्स को हम अंडर कवर इस एरिया में कवर कर सके, और इन्फॉर्मेशन जो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है हम उसको ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर कर सके और एक दूसरे को नॉलेज बढ़ाएंगे। एंड इट इज एन वंडरफुल सेशन टुडे एंड आई थिंक हम बहुत सारे एज अ प्रैक्टिशनर्स हम लोगों को बहुत सारे जो हमारे क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग, हमने उसको क्लियर किया। मैंने तो बहुत ही क्वेश्चंस किए, प्लस हमारे बहुत एक्टिव है हमारे पार्टिसिपेंट जिन्होंने हमें पूरी लिस्ट दी थी। सो थैंक यू फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स एंड एबीसीए मेंबर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रजापति सर, थैंक यू कल्पना मैम, आशीष सर एंड प्रतिभा मैम, एंड इट वाज अ वंडरफुल इवेंट एंड आई थिंक हम इसको एंड कर सकते हैं अब, बिकॉज ऑलरेडी टाइम काफी हो गया एंड आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज कहिए। थैंक यू। Thank you so much, ma'am. Thank you, DC sir, and thank you, Dr. R.P. Parasar sir. अब तक का ये हमारा सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल वेबिनार रहा है, मुझे लगता है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। One more thing, I would really want to thank अखिल सर also. प्लीज हम उन्हें नहीं मिस कर सकते, बिकॉज ये वेबिनार उन्हीं की वजह से हमारा सक्सेसफुल हुआ है। द लिंक एंड ऑल द टेक्निकल सपोर्ट इज गिवन बाय अखिल सर DRFC को। सो प्लीज हमारे साथ जुड़ेंगे तो ये आपको जो सॉफ्टवेयर है वो फ्री मिल रहा है। एंड थैंक यू अखिल सर, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड द होल टीम ऑफ DRFC को। थैंक यू सर। Thank you, Akhil sir. Now we can end this, na? Yes sir. Okay. Okay. Thank you, everyone. Okay. Thank you so much. Thank you for joining.